Let me introduce you to Aarti ma'am, Professor Aarti M. Soni. She is MSc in Home Science, and for last 20 years she is working as a scientist in Krishi Vigyan Kendra NAU Pyara. Actually, her biodata is too big, but some of her significant achievements I would like to share with you. The first and very important is she has achieved the Best Woman Scientist Award of 2019. That is so recent from Society of Extension Education Gujarat. That is a very that should could have been a very proud moment for you, Aarti ma'am. We are very much happy for you. The Best Woman Scientist Award she has received in 2019. Then the Best Article Award also she has received. Those are eight. Best Oral Presentation Awards, those are two. Then she has 12 recognitions. Then TV programs she has done, a single TV program she also has done. Then six radio talks till now she has performed. And there is so much, but I would again tell you entrepreneurship development of tribal women. Such 83 programs she has conducted, the entrepreneurship development of tribal women, that is very important. And hats off to you, ma'am, for working for tribal women and taking so many programs. That's really a good thing. Then she has six success stories, 12 case studies she has done. Then impact of training. These are research studies. Nine research studies she has done till now. Then nine publications. Publications, her publications are research paper published in uh, referred NASA rated journal. वो 18 बनाए हैं आपने, 18 आपके रिसर्च पेपर अभी तक पब्लिश हुए हैं. Then abstract of research paper published are 12. Book published in local language, that is in Gujarati, no? हाँ, those are 5. Special issue published in local language. 18 articles है उसमें जो published हुआ. Book chapter published are 8. Folders published in local language are 67. Oh, wow, right. Subject-based reading materials in local language, those are 7. And popular articles published in local language are 98. And you seem to be a very young lady. कैसे करते हो आप इतना सब? इंटरेस्ट है तो हो जाता है. बहुत ही काम, मतलब ये नंबर्स बोलते बोलते हम लोग थक गए. अच्छा. आपने बहुत ही वेरीफाइड और अच्छे, बहुत अच्छा काम है आपका. हम लोग इसीलिए आपका कब से वेट कर रहे हैं कि आपका सेशन कब होगा. ठीक है, शुरू करते हैं फिर. मैम, यू. थैंक यू. 1 minute, Pallavi. Yes, ma'am. She is Kalpana Sawant, ma'am. Namaskar, Aarti ma'am. Myself, I am President Kalpana Sawant Gardens Club. Welcome in this Coconut Festival Kalpataru 2021. Now, today you are going to show so many nice things from the tribal area. For that, really, we feel very happy. Okay, welcome, and you can start. Thank you very much. Thank you, madam. Yeah. Respected all dignitaries, students, officers, and ladies and gentlemen, good afternoon to all. और मेरा सबको नमस्कार. पहले तो मैं थैंक यू वेरी मच फॉर नाइस माय इंट्रोडक्शन मैडम पल्लवी मैडम और कल्पना मैडम. मैडम, स्क्रीन इज विजिबल? यस. ओके. हाँ, तो हमारा टॉपिक जो है वो गार्डन्स क्लब में से जो आज का जो प्रोग्राम है कोकोनट फेस्टिवल का, इसमें टॉपिक मुझे दिया गया है प्रिपरेशन ऑफ डेकोरेटिव क्राफ्ट्स फ्रॉम कोकोनट फाइबर्स, यानी कोकोनट बाई प्रोडक्ट. तो
इसमें हम देखें मैडम तो क्राफ्ट कोकोनट फेस्टिवल शायद एक वीक से आप ये सेलिब्रेट कर रही हो। तो ये कोकोनट का हम बात करें तो कल्पतरु इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हेल्थ के हिसाब से कोकोनट वाटर है, फिर कोकोनट है। तो हेल्थ के हिसाब से हमें ज़्यादा इसमें बेनिफिट रहता है। और बाई प्रोडक्ट जो इसके छिलके आते हैं इसमें से भी हम डेकोरेटिव आर्टिकल्स बना सकते हैं। आज का जो मेरा सेशन है वो थियोरेटिकल है और मेरे पास यहाँ हमारी जो ट्राइबल लेडी है जो बना रही है ये आर्टिकल्स, मैं दिखाऊं इससे अच्छा है कि वो ही आपको दिखाए और मैं साथ में रहूंगी, इसलिए हम हिंदी में ज्यादा बात करेंगे। तो पहले मैं मैडम ये दिखाना चाहती हूँ, टाइम तो कम है लेकिन 2 मिनट में, कि मैं ये यहाँ केवी के तापी में 12 साल से काम कर रही हूँ, सिंस 12 इयर्स। तो यहाँ ट्राइबल केवी के है और ट्राइबल केवी के में हम देखे मैं इतने साल से हूँ। तो वीमेन जो है वो इसका संगठन अच्छा है और इकोनॉमिकली ट्राइबल कम्युनिटी है बहुत ही पुअर है। तो इसके लिए हम ट्राइबल वीमेन एम्पावरमेंट का हमारी जो केवीके की टीम है वो काम कर रही है। तो इसमें ये थीमेटिक एरियाज है फॉर एम्पावरिंग ट्राइबल वीमेन। तो हमारा जो आज का जो सेशन है इनकम जनरेशन का, जो हमारी महिलाएं कर रही है ट्राइबल लेडीज, तो ये मैंने लास्ट में लिखा इनकम जनरेशन, लेकिन यही काम नहीं कर रहे हैं। वीमेन एम्पावरमेंट में हमारी जो महिलाएं हैं या इसको हमारी जो टीम है साइंटिस्ट की, तो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की ट्रेनिंग तो हम देते ही है, लेकिन साथ में टेक्नोलॉजी अपनानी हो तो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। और हमारा जो केवी के गुजरात का तापी डिस्ट्रिक्ट में है वो ट्राइबल है और महिलाओं और बालकों में माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम ज्यादा है। आपने शायद सुना होगा हेरिडिटरी डिजीज है सिकल सेल एनीमिया, तो उसका भी प्रॉब्लम ज्यादा है। चिल्ड्रन में माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम ज्यादा है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। अभी मॉनसून में लेप्टोस्पायरोसिस रोग है, वो डिजीज है, वो भी देखने को मिलता है। तो इसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की नीड बेस्ड ट्रेनिंग देते हैं। इसके साथ ही फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन यानी वैल्यू एडिशन की भी मेथड डेमोन्स्ट्रेशन नहीं देते हैं, कि जो भी टमाटर है वो बेचती है लेकिन ज्यादा है तो वो घर में भी यूज कर सकती है और इनकम भी बढ़ा सकती है। साथ में इनका श्रम भी घटाना है, ड्रजर रिडक्शन का काम करना है और ये टाइम सेविंग के लिए, एनर्जी सेविंग के लिए बहुत बढ़िया है। तो इसीलिए हम इसका भी अवेयरनेस करते हैं, वीमेन ड्रजरी रिडक्शन स्पेशली इन फार्म ऑपरेशन। तो इसका जो इम्प्लीमेंट है इनका भी हम डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं और अवेयरनेस का काम करते हैं। साथ में इनकम जनरेशन का काम करते हैं, इसके लिए हम सेल्फ हेल्प ग्रुप है, सखी मंडल है, तो वो भी बनाते हैं। और जो भी एनजीओज है और स्टेट गवर्नमेंट के जो आंगनवाड़ी वर्कर है जिन्होंने एसएचजी बनाया है, उनका एक्टिव रखने के लिए वो हमारे पास आते हैं और मैं फॉलो अप इनकी मीटिंग करती हूँ और वही एसएचजी या सखी मंडल के मेंबर्स को मैं इनकम जनरेशन की ट्रेनिंग देती हूँ। तो यहाँ केवीके की मैं बात करूँ तो हमारा जो सेशन है इसके अलावा हम इनकम जनरेशन में ज्यादा से ज्यादा हम ये हर्बल हेयर ऑयल प्रिपरेशन, वे भी हमारी ट्राइबल लेडी है 3 से 4 लाख वो कमा रही है, तो वो भी कई ग्रुप है वो कर रही है। तो इनकम जनरेशन में हर्बल हेयर ऑयल प्रिपरेशन है, इको फ्रेंडली बैग है, वैक्सीन बैग मेकिंग है, फिर ये जो हम कोकोनट फाइबर्स में से अलग अलग आर्टिकल, डेकोरेटिव आर्टिकल्स बना रहे हैं, वो भी काम है। स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग भी हम देते हैं। इन शॉर्ट में ये कहना चाहती हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इनकम जनरेशन के साथ वही एसएचजी मेंबर्स को हम हेल्थ का, न्यूट्रिशन का, प्रिजर्वेशन, वीमेन ड्रजरी और एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, सभी जो टास्क है वो हम एरियाज हैं वो सिलेक्ट करते हैं और एम्पावरमेंट का काम करते हैं। अब ये जो आज का सेशन है, तो पहले तो मैं ये कह दूं कि हम प्रैक्टिकल ज्यादा देखेंगे मैडम, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा मजा आएगा। लेकिन हम थोड़ा इन शॉर्ट बात करें तो
अगले दिनों में आपका जो सेशन है वो कोकोनट का इम्पोर्टेंस क्या है, कोकोनट सेल में से क्या बनता है, न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू इसमें क्या बेनिफिट है, इसका सेशन तो हो गया होगा। लेकिन हम आज कोकोनट बाय प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो इसके लिए पहले ये जानना जरूरी है कि कोकोनट हस्क है, इसमें से कोकोनट फाइबर है, कोयर बोलते हैं, तो वो निकालना पड़ता है। और ये इसको प्रोसेस करके हम अलग अलग वो डिफरेंट प्रकार टाइप्स के आर्टिकल्स हम बना सकते हैं। तो इसकी प्रोसेस है, ये 3 स्टेप में आती है कि कोकोनट हस्क है, हस्क सोक्ड इन वाटर फॉर ओवर अ लॉन्ग पीरियड, दैट इज 15 days to 6 month। जैसे वो कोकोनट हस्क है वो किस प्रकार के है, रो है, ड्राई है, तो वो घर पे जो महिलाएं बना रही है तो वो ऐसे वो डिफिकल्ट काम है, इसके लिए मशीनरी में ज्यादा अच्छा रहता है। लेकिन हमारी जो महिलाएं हैं हम तैयार ही लाते हैं कि जो भी इंडस्ट्रीज है कि कोकोनट फाइबर कोकोनट हस्क में से मशीन में वो बनाती है और होलसेल मार्केट से ही हम वो खरीदते हैं और परचेस करते हैं। और इसमें जो वेस्ट जो होता है तो वो मंदिर में हम कोकोनट है तो वो भगवान को प्रेजेंट करते हैं। फिर वेस्ट जो भी होता है तो उसमें से हम वेस्ट के लिए पे यूज कर सकती है, तो इसके लिए हम घर पे थोड़ा बहुत बना सकते हैं। तो इसको रेटिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो रेटिंग करके फिर इसमें से वो कूट के हम बोल रहे हैं कि फाइबर रिमूव फ्रॉम दिस कोकोनट हस्क, और फिर उसका हम यूज कर सकते हैं। और ये कोकोनट फाइबर है, तो ये मैं अभी फोटोग्राफ्स आपको दिखा रही हूँ, बाद में हम मेथड डेमोन्स्ट्रेशन भी देखेंगे। तो ये हमने जो हम कृषि विज्ञान केंद्र और हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात है वो स्किल डेवलपमेंट का काम भी कर रही है। तो इसका एक सेंटर है गुजरात माटीकाम कलाकारी एंड रूरल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। तो ये जो मेन सेंटर गांधीनगर में है, तो उनके यहाँ स्किल डेवलपमेंट का रूरल के लिए स्पेशली ट्राइबल वुमेन के लिए अलग से फंड रहता है। तो हम केवी के और ये रूरल इंस्टीट्यूट है साथ में मिलके कोलैबोरेशन में काम करते हैं, क्योंकि महिलाओं को इसमें से हम बेनिफिट ये दिला सकते हैं कि इसके लिए स्टाइपेंड भी देती है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, और हम टेक्निकल ट्रेनिंग भी देते हैं। तो इसमें ज्यादा इसमें बेनिफिट रहता है। तो कृषि विज्ञान केंद्र में हम स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के ये जो क्राफ्ट आर्टिकल है मिनिमम 30 days की ट्रेनिंग हम देते हैं। तो इसमें कई प्रकार के आर्टिकल्स है, लेकिन हमारा जो ट्राइबल एरिया है इसमें किसका मार्केट अच्छा मिलता है वो आर्टिकल हमने बनाया है, स्पेशली रूरल क्राफ्ट बोलते हैं। तो पहले आप देख सकते हैं कि ये मटकी है, अभी कल ही जन्माष्टमी का उत्सव पूर्ण हुआ, तो मटकी है तो इसकी भी डिमांड रहती है। और डेकोरेशन तो क्या है कि अपने हिसाब से हम कर सकते हैं, ये हम मेथड डेमोन्स्ट्रेशन में देखेंगे। फिर ये वॉल पीस है, ये बर्ड का है, पीकॉक का भी बना सकते हैं या गणेश जी का भी बना सकते हैं। और साथ में है ये झूमर है, ये 3 ये वेस्ट में से बेस्ट हमने बनाया है। इसमें कोई इतना जो फाइबर्स है इसके अलावा जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वो इतना इजीली अवेलेबल है, घर में भी है, बाहर से भी हम ला सकते हैं। तो कॉस्ट थोड़ा कम होता है। तो ये झूमर है। फिर ये डोरमेट्स है, डोरमेट्स के लिए अलग से फ्रेम आती है। तो इसका जो भी महिलाएं बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन, तो ये जो हमारा स्किल डेवलपमेंट का जो सेंटर है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का, तो वो बेनिफिट इस तरह देता है कि भी दे रहे हैं। वो जो फ्रेम आती है वो 1200 के करीब इसका कॉस्टिंग होता है, तो वो महिलाओं को लाना नहीं पड़ता। तो वो भी हम ज्यादा से ज्यादा उनको बेनिफिट हो ऐसा हम कर रहे हैं कार्य। तो ये अलग अलग डिजाइन के डोरमेट्स भी महिलाएं बना सकती है। ये कलर्स है, तो ये भी बना सकते हैं अपने हिसाब से, हैंगिंग आर्टिकल है। फिर ये यहाँ ट्राइबल एरिया है, तो इसमें यही डिमांड है, हमारी महिलाएं ने ये ट्रेनिंग में ही बनाया है फर्स्ट टाइम, लेकिन कितना आप देख सकते कितना बढ़िया बनाया है। और अभी ये इसका वो गृह उद्योग भी कर रही है। तो यहाँ का जो डिमांड है इसके हिसाब से हमने बनाया है, लेकिन सिटी की महिलाओं को जो भी पसंद है उसके हिसाब से भी हम डिजाइन इसमें
चेंज कर सकते हैं। फिर ये है शोपीस। सिटी की महिलाओं को हम स्टॉल में महिलाओं को बेचते हैं, तो यहाँ डिमांड ऐसी आती है कि सिटी में जो महिला है तो वो 100 पीस चाहिए। तो पहले फोटोग्राफ्स में आप देख सकते हैं कि ये 100 पीस है और बर्ड्स इसमें रखे हुए हैं, तो वो भी हमारी महिलाएं बनाती है। ये हैंगिंग आर्टिकल है, ये पैर में आ रहा है वो बर्ड है। फिर ये लेटर बॉक्स है, ये भी हमारी महिला ने ही बनाया है। फिर अभी थोड़े ही दिन बाकी है तो कोकोनट फाइबर्स में से, क्योंकि ये हमारा अभी काम इस साल ही शुरू किया है लेकिन जोर शोर से हो रहा है, क्योंकि अब हम ये आर्टिकल तो साइड में है, लेकिन गणेश उत्सव के लिए इको फ्रेंडली 100% इको फ्रेंडली गणेश जी भी हम बना सकते हैं। तो मेरी ये सोच है और साथ में महिलाओं के साथ हमने मीटिंग की और साथ में मिलके हमने इस साल ये निश्चय किया कि हम ऐसी गणेश जी की प्रतिमाएं भी बनाएं और मार्केट में रखे, तो इसमें से भी एडिशनल इनकम बहुत ज्यादा सीजनल ये गृह उद्योग है वो हो सकता है। ये भी हम आपको थोड़ा बहुत दिखाएंगे कि गणेश जी की मूर्ति कैसे बनती है। अब हमने जो आगे बात की, क्योंकि हम मेथड डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ज्यादा वक्त निकालेंगे, लेकिन हमारा जो काम है तो इसमें से हमने 2-3 केस स्टडी बनाई है कि 3 ग्रुप हमारा अभी 1 साल से ये काम कर रहा है। एक ये कैवल कृपा सखी मंडल है, इसमें 14 ट्राइबल वुमेन मेंबर्स है, इसमें से 9 महिलाएं हैं ट्राइबल महिलाएं, इन्होंने ये गृह उद्योग शुरू किया है। एक हमारी केवीके और गुजरात माटीकाम कलाकारी एंड रूरल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, इसके साथ हमने ये 30 डेज की ट्रेनिंग दी है। ये फोटोग्राफ्स है कि जहां हमने ट्रेनिंग दी थी, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग। तो ये महिलाओं की हम बात करें, ये ग्रुप है सखी मंडल का, तो वो फार्म लेबर का काम करती है, थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर है और एनिमल हस्बेंड्री है, इसीलिए फैमिली इनकम एवरेज हमने ये लिखी है, तो वैसे देखा जाए तो बहुत कम है, इसलिए उनको लेबर के लिए फार्म में अलग से जाना पड़ता है। तो यही महिलाओं को हमने जो ट्रेनिंग दी, तो इसमें पर ट्रेनी 1500 गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने स्टाइपेंड दिया। तो अभी 9 महिलाएं हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 9 महिलाएं करते हैं तो इसका बजट भी बढ़ जाता है, और इतना बजट में ही उन्होंने अभी शुरू किया। तो लास्ट ईयर उन्होंने जब शुरू किया तब फेस्टिवल फेयर वगैरह आ रहे हैं, हाट बाजार है, तो उन्होंने वहाँ स्टॉल लगाया और उस वक्त 4 से 5 हजार तक वो उनको इनकम हुई, तो वो खुश हो गए। फिर क्या हुआ कि उन्होंने जब बनाना शुरू किया तो हमने शुरू करवाया, और तुरंत ही 1-2 महीने में ही कोरोना वायरस की एंट्री हुई हमारे इंडिया में। कोरोना वायरस ये पेंडेमिक सिचुएशन में ऐसा हुआ कि ये महिलाएं हैं वो हाट बाजार में जा नहीं सकती, वो कोई स्टॉल भी हम दे नहीं सकते, तो इतना उन्होंने बनाया है तो कैसे वो इनका सेलिंग होगा। तो पहले तो हम ये मार्केटिंग के लिए लोकल मार्केट है, सखी मंडल है, सोशल कॉन्टेक्ट है, SHG है, फेस्टिवल फेयर है, लेकिन ये लास्ट में लिखा है प्रेस मीडिया। इसलिए मैंने ये सोचा, हमारे केवीके के जो हेड है, हम दोनों ने ये सोचा कि हम प्रेस में मार्केट में पता तो चलना चाहिए कि ये ग्रुप है वो ऐसा बना रही है, तो इसको मार्केटिंग के लिए ये भी पता होना चाहिए, तो हमने प्रेस में दिया। तो ये आप फोटोग्राफ्स देख रहे हैं कि अपने घर पे ही स्पेयर टाइम में वो एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री के साथ वो स्पेयर टाइम में 9 महिलाएं साथ में मिलके ये कोकोनट फाइबर्स के आर्टिकल्स बना रही है। यह पहला फोटोग्राफ है, ये फर्स्ट उनका एक्सपीरियंस है कि वहाँ 4 से 5 हजार की इनकम हुई थी, वो फेस्टिवल फेयर था और हाट बाजार में उन्होंने ये सेलिंग किया था। फिर ये जो दूसरा फोटोग्राफ्स है, इसमें आप देख रहे हैं कि हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र वो अटारी पुणे की वहाँ जोन 8 में आ रहा है। तो यहाँ वहाँ से सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर भलेराव वो हमारे यहाँ केवीके के विजिट में आए थे। वहाँ अलग अलग ट्राइबल वीमेन एम्पावरमेंट की जो हमारी
एक्टिविटीज रहती है, तो वहाँ ये महिला का भी एग्जीबिशन था, तो उन्होंने भी इन महिलाओं का जो वर्क है वो अप्रिशिएट किया था। फिर आगे में जो मैंने जो बात की कि न्यूज चैनल में प्रेस मीडिया कवरेज के लिए हमने ये लीडर है सखी मंडल की, तो हमने न्यूज में उनका इंटरव्यू भी दिया। तो इससे क्या हुआ कि घर बैठे ही कोरोना की पेंडेमिक सिचुएशन में उनको ऑर्डर मिलने लगा। तो आगे मैंने इनकम लिखी थी कि घर पे ही ये महिलाएं 25,000 से भी ज्यादा उनको सप्लीमेंट्री इनकम हो गई पिछले 1 साल में। दूसरा, आप ये फोटोग्राफ्स देख रहे हैं कि गणेश जी की मूर्ति, अभी गणेश जी उत्सव आ रहा है तो वो बना रही है, और 1 फुट से इससे कम, इससे ज्यादा 4 से 5 फीट साइज की मूर्ति ये महिलाएं बना रही है। लाइव सैंपल भी हम आपको दिखाएंगे। ये अलग अलग प्रकार के हमारे गणेश जी है, आप देख सकते हैं। अलग अलग डेकोरेशन और जो भी कॉस्टिंग है कि कस्टमर को पसंद आनी चाहिए और बजट में भी आना चाहिए, तो इसके हिसाब से ये महिलाओं ने बनाई है। अब दूसरा जो ग्रुप है हमारा, ये बोरखड़ी गांव का, तो ये 2 महिलाएं हैं, और ये 2 महिलाएं प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी है स्नेहा सखी मंडल में। ये पूरा ग्रुप नहीं कर रहा है, लेकिन 2 ही महिलाओं का ग्रुप है, लेकिन ज्यादा एक्टिव है। तो इस महिला का मैं वो जयश्री बहन और रक्षा बहन, तो आप यहाँ फोटोग्राफ्स देख सकते हैं कि 2 महिलाएं मिलके भी यहाँ काम कर रही है। और उनकी जो इनकम की मैं बात करूँ तो 35,750 रुपीज लास्ट 1 ईयर की ये उनकी सप्लीमेंट्री इनकम है, क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत कम है उनका, और एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन तो है ही नहीं, तो इसलिए उनको लेबर वर्क, फार्म लेबर वर्क के लिए जाना पड़ता है। तो इससे 1500 जो स्टाइपन हमने दिया था, तो 2 महिलाएं हैं तो 3000 में से 35,750 रुपीज की उन्होंने इनकम मिली। ये मार्केटिंग अरेंजमेंट के लिए लिखा है। ये 2 महिलाओं ने भी गणेश जी की मूर्ति है वो प्रतिमाएं बहुत अच्छी बनाई है। 2 महिलाओं का ग्रुप है, इसलिए एक ही गांव का है, इसलिए इस ग्रुप ने ऐसा सोचा कि हम छोटी प्रतिमाएं बनाए, और दूसरा जो बड़ा ग्रुप है वो बड़ी बड़ी मूर्तियां गणेश जी के बना रहे हैं सेलिंग के लिए। और ये एक एडिशनल बहुत अच्छी बात है कि इस ग्रुप की जो जयश्री बहन चौधरी, ये महिलाएं ये 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ी हुई है और एक्टिव भी है। तो अहमदाबाद में एक स्टॉल था वो फेयर में, कोरोना के जस्ट पहले, तो इतने अच्छे अच्छे आर्टिकल्स बनाए थे। तो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का जो स्किल डेवलपमेंट का सेंटर है, वहाँ से डायरेक्टर है वहाँ विजिट के लिए गए थे, तो उन्होंने उनका डायरेक्ट सिलेक्शन कर दिया कि तापी डिस्ट्रिक्ट में जो भी स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग हम आगे से महिलाओं को देंगे, तो इसमें हेल्पर के लिए हम इनको भेजें। तो ये भी बहुत बढ़िया है कि वो घर पे बना के तो सेलिंग करके तो इनकम, सप्लीमेंट्री इनकम मिलती है, लेकिन पर ट्रेनिंग ये महिला को ₹9,000 पर ट्रेनिंग वो इनकम उनकी होती है। ये तीसरा ग्रुप है, अभी एक्टिव हुआ है। तो ये दोनों ग्रुप को देख के ये 5 महिला का ग्रुप है, उनको भी हमने आगे 1 साल पहले ट्रेनिंग दी थी, तो उनको लगा कि चलो हम भी, लेकिन ये ग्रुप है थोड़ा एग्रीकल्चर ज्यादा है, पशुपालन का भी ज्यादा है, इसलिए थोड़ा स्पेयर टाइम कम मिलता है। तो ये 5 महिलाओं ने सोचा कि चलो रिलेटिव्स है हमारे घर के लिए, और ऑर्डर आता है तभी वो आर्टिकल्स बना के वो सेलिंग करती है। तो अभी जस्ट 1 महीने पहले शुरू किया है, लेकिन उन्होंने 5,000 जितनी इनकम है वो जनरेट की है। तो ये जो 3 ग्रुप है वो मैंने आपको बात की। तो अब हमारा जो सेशन है वो मैं आपको वहां लेके चलूंगी कि हमारे साथ ये 2 जो ग्रुप है, स्नेहा सखी मंडल और कैवल कृपा सखी मंडल, तो वो महिलाओं को हम मिलेंगे, मैं भी साथ में हूँ, और
हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो इसके टाइम के हिसाब से थोड़ा सब कुछ तो हम नहीं दिखा सकते, लेकिन थोड़ा ट्रेलर जैसा कि वो देख के आपको पता चल जाएगा कि चलो ये आर्टिकल कैसे बना सकते हैं, और बहुत अच्छा है ये। वैसे तो ये वेस्ट में से बेस्ट ऐसा भी कर सकते हैं और बहुत अच्छा है, लेकिन आज बहुत सारी हमारे साथ महिलाएं भी होंगी, तो इसके लिए जो ये कांटेक्ट डिटेल है कोकोनट फाइबर्स के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा ये केरला और तमिलनाडु, तो इसमें ये फाइबर्स की इंडस्ट्री तो है, इसके कांटेक्ट नंबर भी मैंने लिखे हैं, उनकी वेबसाइट भी है। आप गूगल में सर्च करोगे तो ये कोकोनट फाइबर टेक या कुमारन फाइबर्स, तो वो आपको वेबसाइट भी देखने को मिलेगी। और हमारे गुजरात की बात करूं तो एक है वो जूनागढ़ के पास है मैत्री एंटरप्राइज, तो वहां से होलसेल मार्केट से हम कोकोनट फाइबर्स है वो परचेस कर रहे हैं। अभी तो एक बड़ी अच्छी बात है कि हमारे साउथ गुजरात में फर्स्ट टाइम ये महिलाओं ने शुरू किया है, इसलिए सरकार ने ये सुविधा भी दी है कि घर बैठे ही उनको होलसेल भाव में वो रेट जो होता है वो कोकोनट फाइबर्स हम प्रोवाइड करते हैं, और ये महिलाएं बना रही है और सेलिंग करके इनकम जनरेट कर रही है। आप के यहाँ जो महाराष्ट्र में मुंबई का भी ये एड्रेस है वो भी आप लिख सकते हैं। तो ये जो हम जो सोच रहे हैं कि अभी तो हमने जस्ट शुरुआत की है और आपको पता चला कि चलो ऐसा कोई हमारा फेस्टिवल है तो आपका सेशन रखे, लेकिन हमारी जो सोच है केवीके की, तो हम आगे इस तरह ले जाएंगे कि हमारे जो तापी डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर साहब है, डीडीओ साहब है, उनके साथ भी बात की है, और मार्केटिंग का सारा अरेंजमेंट उन्होंने ही वो ले लिया है। और अभी की मैं बात करूं तो हमारे कलेक्टर साहब ने, डीडीओ साहब ने बोला है कि मिनिमम 100 प्रतिमाएं गणेश जी की मार्केटिंग की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम स्टेट गवर्नमेंट ले रही है, तो महिलाएं हमारी ज्यादा रात दिन वो काम कर रही है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेती हूँ, आओ हम सखी मंडल मेंबर जो है हमारे इनके साथ जाए, मैं भी साथ में हूँ, और आप हम अलग अलग प्रकार के वो डिफरेंट टाइप्स के आर्टिकल्स हैं वो हम देखें। थैंक यू वेरी मच। हेलो मैडम। जी मैम। हाँ जी मैम, बोलिए। हाँ, अच्छा आवाज आ रही थी मैडम, ऑडिबल? हाँ, एकदम एकदम परफेक्ट, कोई तो प्रॉब्लम हम नहीं। प्रैक्टिकल सेशन शुरू करें, यस फिर मैम, करते हैं। करेंगे। हाँ ओके, थोड़ा 2 मिनट मुझे चाहिए सेटअप करने के लिए। ठीक है ना मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ चलो चकली। मैडम दिखाई दे रहा है? हाँ, दिख रहा है मैम, दिखाई दे रहा है। हाँ। अच्छा, पहले तो मेरे साथ जो महिलाएं हैं वो कैवल कृपा सखी मंडल ग्रुप से है, इसमें 9 महिलाएं काम कर रही है, लेकिन सभी तो यहाँ आ नहीं सकती क्योंकि गणेश जी की प्रतिमा वो बना रही है। हम पहले ये हैंगिंग आर्टिकल है, दिखाई दे रहा है मैडम? हाँ मैम, दिखाई दे रहे दिख रहे। ये हाँ। वो बर्ड्स है, स्पैरो बोल रहे हैं,
तो ये पैर में आता है। यहाँ ट्राइबल में इसका सेलिंग ज्यादा होता है हमारे यहाँ। तो ये जो बर्ड्स है स्पैरो बोल रहे हैं, इसमें हम कुछ बना सकते हैं। एलिफेंट है, वो हॉर्स है, अपने हिसाब से वो जैसे जैसे डिमांड है। तो ये स्पैरो कैसे बनता है तो वो हमें ये महिला दिखाएंगी, निर्मला बहन है। तो पहले हम इससे मिलते हैं। ये ट्राइबल लेडीज है, इसलिए वो लोकल लैंग्वेज में बोलेगी, लेकिन मैं हिंदी में आपको बताऊंगी मैडम। अच्छा, गुजराती में बात करेंगे वो? वो गुजराती, उनको हिंदी नहीं आएगी। अच्छा ठीक है मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, मैं साथ में बोल रही हूँ, थोड़ा आपको कैमरा तो जो ड्राई कोकोनट मैडम रहता है ना, ये वेस्ट है मटेरियल। आपको दिखाई देता है? हेलो। हाँ, यस यस, वी कैन सी। हाँ, दिख रहा है अच्छी तरह से। तो ये वेस्ट में से ही, ये प्रोसेस किया हुआ नहीं है, ये वेस्ट है कोकोनट फाइबर। इसमें से हम स्पैरो बर्ड बनाएंगे। तो इसको पहले ऐसे लेना है। રેસર લેવાનો અને બોલ બનાવવાનો, આવી રીતના બોલ બનાવવાનો, ત્યાં બની જાય નાનું બોલ। इससे हमको ये राउंड में बनाना है, बॉल जैसा, इसके वो फेस के लिए। પછી આ બીજું બનાવવાનું નાનું, આ બોલ નાનો બનાવવાનો આવી રીતના। આ બે બોલ બની ગયા, પછી આ લેવાનું સરખું કરવાનું, પછી અહીંયા માથા પર નાનો બોલ। अच्छा, दो हमने बॉल बनाए, एक छोटा वाला और बड़ा वाला, और इसको हम वेस्ट मटेरियल है इसमें रखेंगे। फेस वो कॉटन थ्रेड रहता है ना मैडम, किया है बांधने में। ત્યારબાદ આવી રીતના ચપલીનું ચાંચ માટે આવી રીતના ચાંચ शेप देके फिर थ्रेड से हमें वो शेप देना है और बांध के रखना है। तो ये उनका मुंह होगा। આવી રીતના કાપી દે ચાંચ જેવડી રહે તેવી મોટા બોલ પેટ માટે પછી આવી રીતના આકાર આપવાનો। Saya Pak. थोड़ा शेप दिखाई देता है मैडम? हाँ यस, बहुत अच्छे। हाँ, ये बर्ड है ना, इसका ये शेप बना हुआ है। ये बेस हाँ। बेस अपने हिसाब से ये साइज बड़ी या छोटी कर सकते हैं। यस,
ये मैडम क्या है कि ये कॉयर हाँ, ये थोड़ा स्किल का काम है, इसलिए थोड़ी देर तो लगेगी, और ये फास्ट हमें आपको दिखाना है फास्ट फॉरवर्ड में। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, अच्छे, कोई बात नहीं है, चल रहा है। दबाई दे। अच्छा मैडम, ये आप बना रही है वुमन, तो ये आप देख रहे हैं ना, ये प्रोसेस किए हुए कोकोनट फाइबर है। हमने पहले जो हाँ, बेस हमने, ये वेस्ट कोकोनट है, प्रोसेस किया हुआ नहीं है, तो इसकी कॉस्टिंग जीरो जैसे ही है। मंदिर में वगैरह ऐसे ही हम फेंक देते हैं ना, तो वो हाँ, क्या हुआ है, तो कॉस्टिंग इससे कम हो जाएगी। यस। Harapan. हमारा मैडम क्या होता है कि ये 9 महिलाएं हैं, तो सब में अलग अलग वो डिफरेंट टाइप्स की कैपेबिलिटी रहती है। एक महिला ऐसी है कि वो बोलने में ज्यादा वो एक्टिव है, तो मार्केटिंग में वो चलती है। ये बर्ड्स वगैरह वो जो शेप बनाना होता है, तो ये निर्मला बहन है, तो वो अच्छी तरह से बना सकती है। फिर कोई गणेश जी का डेकोरेशन करना हो, तो उनके साथ में जो महिला है, तो वो अच्छी तरह से कर सकती है। तो ये ग्रुप में, ये संगठन से काम करते हैं, तो ज्यादा अच्छा लगता है, और अच्छा आर्टिकल भी वो बना सकती है। सबके पास अलग अलग स्किल है, गुड। स्किल है, इसलिए ये ज्यादा ठीक है, क्योंकि एक महिला तो सब कुछ कैपेबिलिटी होती ही नहीं है। यस, मैडम, हम अपनी भी बात करें, ये पर्सनली मैं कर रही हूँ कि चलो हम सर्विस करते हैं, तो इसमें हम ज्यादा अच्छी तरह से अपना दे सकते हैं इनपुट, लेकिन हम कोई ग्रुप शुरू करें तो हम शायद नहीं चल सकते इसमें, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें अंदर रॉ फाइबर है और ऊपर अच्छा कॉयर फाइबर यूज किया है ना। कोर फाइबर यूज किया है, तो इससे हाँ, कॉस्टिंग कम हो जाती है, यस यस, गुड। वेस्ट भी हम यूज कर सकते हैं। हाँ, और ये, और कोई प्लास्टिक वगैरह कोई भी मटेरियल यूज नहीं करती है ये महिलाएं, पॉल्यूशन के हिसाब से, तो वो नेचर के लिए भी ठीक है। यस यस। और फिर अलग अलग शेप दे के डेकोरेटिव आर्टिकल्स अपने हिसाब से वो बना सकती है कोई भी। कोई कस्टमर की यही डिमांड है कि हमें वो बर्ड्स का वो हैंगिंग आर्टिकल नहीं चाहिए, हमें वो एलिफेंट का चाहिए, तो वो बना सकती है। हॉर्स का चाहिए तो वो भी बना सकती है। फिर ये पीकॉक आता है ना, वो भी कर सकती है। फिर वो वो अपने हिसाब से अलग अलग जिसकी भी डिमांड है, लेकिन ये स्पैरो वाला है, इसकी डिमांड ज्यादा है और वो जल्दी से बन भी जाता है, तो इसलिए हम आपको ये दिखा रहे हैं। આ બની ગઈ હવે અહીંયા હાથ મૂકવાનો છે. अच्छा मैडम, बर्ड जैसा दिख रहा है, ये बहुत ही हमारी, बढ़िया। हाँ, ये स्पैरो तैयार हो गई। अब इसमें, अब तैयार दिखाइए। इसको,
इसमें अभी हम ये आँख है वो रखेंगे और फिर अपने हिसाब से इसमें डेकोरेशन करना है। और ये आप देख रहे हैं तो इसका ये सीट बनानी होती है रो फाइबर्स की और फिर ऐसा शेप देते हैं और फिर इसमें डेकोरेशन किया हुआ है वो आप આવી રીતના અહીંયા નીચે મૂકવાનું અને સોલ્યુશન આ જે સોલ્યુશન આવી રીતના ટીપી કાઢવાનું પછી આ ઉઠી જાય એટલે એમાં શેપ આપવાનો શક્કરપરા આકારનો। अच्छा मेन बात ये है मैडम कि ये जो आर्टिकल्स बनाते हैं तो मिल्क सॉल्यूशन की ज्यादा वो जरूरत होती है, मिल्क सॉल्यूशन बोलते हैं। तो जो जूता बनाने के लिए यूज करते हैं ना सॉल्यूशन वो, तो वो अच्छी तरह से वो चिपक जाता है और कोई फेविक्विक या वगैरह वो नहीं चलती है। तो मिल्क सॉल्यूशन ये पर लीटर यहाँ गुजरात में 180 रुपीज में ये मिलता है मिल्क सॉल्यूशन। ये होलसेल प्राइस है। किससे बनता है ये? ये मिल्क सॉल्यूशन है ना मैडम, ये तैयार ही हाँ, वो जूते बनाने के लिए जो इस्तेमाल होता है ना वो चिपकाने के लिए, वो जो सॉल्यूशन आता है ना वो इसको मिल्क सॉल्यूशन बोलते हैं मार्केट में। तो वो तैयार ही मिलता है और इनकी कॉस्टिंग है 1 लीटर की 180 रुपीज। तो ये आर्टिकल्स बनाने के लिए क्या चाहिए? तो मिल्क सॉल्यूशन चाहिए, वो दूध जैसा ही दिखता है व्हाइट कलर में, और ये कोकोनट फाइबर्स चाहिए। और डेकोरेशन के लिए तो इतना कॉस्टली मटेरियल नहीं आता है, अपने हिसाब से हम वो मार्केट से हम ले सकते हैं और वेस्ट में से भी बेस्ट बना सकते हैं। तो ये महिलाएं ये वो गुजराती में बोली। तो ये हमने जो बर्ड्स का जो आर्टिकल देखा इसमें से ये ऊपर वाला जो भाग है तो वो कैसे बनाते हैं? तो ये फाइबर्स लेना होता है, इसमें ये मिल्क सॉल्यूशन है वो इसमें लगाना होता है, फिर उसको हाथ से ही ऐसे दबाना पड़ता है। थोड़ी देर रखेंगे तो वो ऐसे हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, तब इसमें से कातर वो इससे हम ये ऐसा शेप दे देंगे और ये हो जाएगा। अच्छा, तो ये हमारा हाँ, ये एक आर्टिकल ऐसा पैर में ये महिलाएं बेच रही है और इनकी हम कीमत कितना में बेच रही है? अच्छा, 150 रुपीज में ये 2 पैर में महिलाएं बेच रही है और अच्छी तरह से इसका सेलिंग होता है क्योंकि ट्राइबल एरिया में ये सबको पसंद आता है। अब हम दूसरा आर्टिकल देखेंगे। इसके लिए दूसरा ग्रुप है, इनकी वो जो जयश्री बहन चौधरी है वो आएंगी और हमको पहले मटकी बनाना सिखाएंगी। अभी जन्माष्टमी कल ही गई है तो वो हम देख ले। गार्डन क्लब की ओर से निर्मला और सब महिलाओं को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छा, हमारी महिलाएं भी धन्यवाद आपको दे रही है। यस, वो गुजराती में बोल के अगर धन्यवाद देती है तो चलेगा, हम लोग सुनेंगे। वो आ रही है निर्मला बेन। नहीं, તમે ગુજરાતીમાં બોલો, વાંધો નહીં। થેન્ક યુ મેમ। અહીંયા देखो, થેન્ક યુ મેમ। हाँ, कहीं नहीं, चलो थैंक यू बोला है उन्होंने। यस, सारो छे बोलते हैं ना, अच्छा है। आओ, नमस्ते मैडम। अच्छा, तो हम ये दूसरा आर्टिकल अभी आपको दिखा रहे हैं, ये मटकी है।
वो कस्टमर के हिसाब से, ये छोटी मटकी है, बड़ी मटकी भी महिलाएं बनाती है। तो ये बहुत इजी है। हम देख के ऐसा लग रहा है कि ये कैसे बनेगी, लेकिन ये महिलाएं अभी बना देगी। ये हमारी वो स्नेहा सखी मंडल की प्रेसिडेंट है, जयश्री बेन चौधरी। और वो अभी मैंने आपको केस स्टडी जो अभी दिखाई, तो हेल्पर का भी वो काम कर रही है और एडिशनल इनकम पर ट्रेनिंग 9,000 भी वो कमा रही है। तो जयश्री बेन તો આપણે આ રોલર એસો લેવાનો, એને આમ ધીરે 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 દબાવવાનો. દબાવવાથી આમ એકદમ લાગે આપણને કે ફિટ થઈ ગયા હાથમાં. પછી આ જે દોરો છે એનો આપણે ઉપયોગ કરીએ, દોર દોર વીંટાળવાનું. આ રીતના આપણે દોર દોર વીંટાળીને પછી પાછું લેવાનું, પાછું ઉપર લેવાનું, પાછું વીંટાળવાનું. अच्छा, आप वो गुजराती में बोली। तो मटकी के लिए पहले हमें ऐसा बॉल बनाना है। तो बॉल के लिए पहले थोड़े कोकोनट फाइबर्स लेने हैं, वायर है, और फिर थोड़ा थोड़ा करके हमें ऐसा वो कच्चा बॉल है वो बनाया और वो थ्रेड से ऐसे लपेट लिया। और फिर ये हार्ड होना चाहिए और फिर ये गोल गोल करके हम बड़ा बनाएंगे। इसको दबा के ही ये करना है, तभी ये शेप अच्छी तरह से आएगा। આપણા હિસાબથી આપણને જેવડી મટકી જોઈએ એવડો બોલ બનાવવાનો. हमें ये चाहिए, बड़ी मटकी बनानी है तो बड़ा सा बॉल लेंगे। तो इसके लिए जो बड़ी मटकी बनानी है, तो वेस्ट जो कोकोनट फाइबर है उसका भी हम अंदर भीतर वहां यूज कर सकते हैं कॉस्टिंग घटाने के लिए। ये बॉल हो गया, तो ये कैसे दिखेगा? और આના માટે એક રિંગની જરૂર પડે. अच्छा, हमें मटकी बनानी है तो ये घड़ा हम बोल रहे हैं। तो ये भाग है, बॉल है ये, और ये ऊपर रिंग जैसा दिख रहा है वो अलग से बनाना है, वो भी बना रही है। અને પણ લાંબુ વીંટાળવાનું ગોળ ગોળ, જેથી આ મજબૂત રહેવું જોઈએ. थ्रेड हम लपेटते हैं कोकोनट फाइबर, तो वो हार्ड होना चाहिए, तभी वो ये रिंग बनेगी। फिर इसको हम शेप देंगे गोल। बताओ। ये जो खुला है उसमें थोड़ी सी हिंदी आती है मेरे को, ज्यादा अच्छा। नहीं। ये ऐसा मिक्स करके गोल करना इसको, फिर बाद में ऐसा बन जाएगा। तो देखिए इसके ऊपर ये तो छोटा सा आपको जैसे साइज की चाहिए वैसी में बनाने की, तो ये ऐसे रखने का और इसमें से सिलाई करने की। सिलाई कर दी हमने, अपने हिसाब से वो डेकोरेशन कर दिया, ऐसा चाहिए वैसा। ये अलग अलग अपने हिसाब से आपकी ये choice। बॉल के ऊपर हमने ये रिंग रख दी, ये रिंग, और फिर स्विंग इसमें वो थ्रेड से ही वो सिलाई करनी है और ऐसा ये शेप हो जाएगा मटकी का। और इसके ऊपर अपने हिसाब से जो भी डेकोरेशन करना है वो ऊन जो आता है तो इससे हम कर सकते हैं। और ये हो गई अपनी मटकी। ये तो आपको पता ही होगा कि ऐसा डेकोरेशन कैसे होता है। और ये मुरली बनानी होती है, लकड़ी का लकड़ी है उसके ऊपर वो लपेट लिया है। जो भी डेकोरेशन सिल्वर या गोल्डन जो भी करना हो, तो ये मटकी तैयार। तो मटकी भी यहाँ स्टॉल में मटकी की भी ज्यादा वो सेलिंग हो रही है। स्पेशली वो फेस्टिवल होता है
तब यहाँ ट्राइबल एरिया में तो इसकी डिमांड ज्यादा है। तो हमारा ये दूसरा आर्टिकल हुआ मटकी। अभी हम एक झूमर बनाएंगे। अच्छा, ये लाओ मैं आपको बताऊं। नानू। अच्छा, ये तीसरा आर्टिकल है मैडम, ये झूमर है, हैंगिंग आर्टिकल। तो ये वेस्ट में से बेस्ट बनाया है। तो ये ऊपर का जो आपको दिख रहा है, ये घर में ऐसे ही फनल प्लास्टिक की आती है, वो ऐसे ही पड़ी हुई, बड़ी भी आती है, छोटी आती है, जिस साइज का झूमर बनाना हो। और प्लास्टिक की दुकान वो शॉप में से हम लाते हैं तो भी ये 5-10 रुपए में तो मिल जाती है। तो वेस्ट में से हम बेस्ट यूज करके डेकोरेटिव आर्टिकल्स बना सकते हैं। तो ये हम आपको दिखाएंगे। वो फनल के ऊपर मिल्क सॉल्यूशन है, हाँ, वो लगाना पड़ता है पहले। इसके ऊपर ये रेशा खोल के हम चिपकाएंगे। तो हम थोड़ा सा ही दिखाएंगे, आपको यहाँ आना पड़ेगा तभी पूरा दिखाएंगे। ये हाँ, महिला जरूर बोल रही है आएंगे। कि थोड़ा थोड़ा दिखा सकते हैं, यहाँ आएंगे तो हम पूरी तरह आपको ट्रेन कर सकते हैं, ऐसा बोल रही है। हाँ हाँ, धीरे धीरे ये मिल्क सॉल्यूशन है, तो फाइबर हमें दबा दबा कर इसको सेक देना है। फीट बना, इसके ऊपर पूरा वो चिपक जाना चाहिए। जब चिपक जाए फिर बाद में आप डेकोरेशन कर सकते हैं। और आपने दिखाया वो शेर तो आपको आती होगी, और ये जो वो रेशा है ना, उसमें से सुई का धागा निकाल के हम शेर लटका सकते हैं, पूरा ऐसा बन जाएगा। अच्छा, ये मैडम बस इतना इजी है और एक आर्टिकल बन जाता है। फिर ये तो हम अपने हिसाब से ये डेकोरेशन कर सकते हैं। अच्छा, बीच में स्पैरो भी यहाँ हैंगिंग में लटका सकते हैं, और बड़ा मोटे झूमर। और ये जो छोटा वाला झूमर है वो एक है, तो इतना बड़ा भी हम हमारी महिलाएं बनाती है। ये बनाने का और दिखा ना मैडम, ये बड़ी फनल है, ऊपर वाली इससे छोटी और इससे छोटी। हाँ, दिखाई दे रही है बहुत अच्छी तरह। और हाँ, भी पैर में ये महिलाएं बेच रही है। पैर का कितना है मैडम? 500 में पैर में ये बेच रही है। और इसमें है कुछ नहीं कॉस्टिंग, लेकिन अच्छा दिखता है ट्राइबल में। बहुत कलरफुल है। अच्छा, ये महिलाएं जब सिटी में जाती है तो डेकोरेशन उनका अलग से होता है, सिटी में डिमांड के हिसाब से। और यहाँ ट्राइबल है तो इसके हिसाब से ये डेकोरेशन करते हैं, क्योंकि यहाँ ज्यादातर कच्चे घर ही है। हमारे तापी डिस्ट्रिक्ट है तो इसमें 83% तो ट्राइबल कम्युनिटी है। मैडम, ये आपको दिखाई देगा, ये 100 पीस है। मैंने फोटो भी दिखाई थी आपको। ऊपर स्पैरो है, तो वो अलग अलग ऐसे 100 पीस है। तो जो अहमदाबाद या गांधीनगर या सिटी सूरत में स्टॉल रहता है तो ये भी बनाती है ये महिला, तो ये बिक भी जाता है। तो हम ये कैसे बनाते हैं वो आपको दिखाएगी। આજે ખુલ્લા રેસા છે, આપણે એને સીધા કરવાના। સીધા કર્યા બાદ આપણે દોરાનો ઉપયોગ કરીશું। જે રીતે ઉપરનું થોડું ખુલ્લું રાખવાનું ને નીચે દાંડી જેમ બને તે રીતના ઉતારો। वो जो कोकोनट फाइबर रहता है उसको स्ट्रेट पहले सीधा करना है, और ऊपर का छोड़ के फिर ये थ्रेड है इसको नीचे से वो डाली बनानी है, तो ये ऐसे लपेटना। ऊपर से कट कर देने का। फिर शेप देने के लिए ऊपर से हम कट कर सकते हैं अपने हिसाब से। आपको जैसा शेप चाहिए वैसा भी बन सकता है।
बहुत अच्छा, हमारी महिला हिंदी में बोल रही है मैडम। थोड़ी हम ट्राई तो कर रहे हैं मैडम वुमेन एम्पावरमेंट का, देखते हैं। यस साथ में मैं बात आपको करूँ तो हमारी कई गाड़ी बढ़ाने के लिए थोड़ा सा और ऐसा चाहिए आपको, वो ऐसा डाली वो लंबी करनी है, वो कर रही है। लंबी हो गई अपनी। ऐसा ही दूसरा छोटा बनाने का, जिसमें आप ऐसे करके जोड़ सकते हैं गाड़ी के साथ। ऐसे हमें 3 करना है, 4 करना है, अपने 5 हिसाब करना से। है अपने हिसाब से, तो इतना ऐड करना होता है ऐसे। ये ऐसा। और ऐसा કેટલામાં વેચો છો? કેટલામાં વેચો છો? अच्छा, साइज के हिसाब से इसकी कॉस्टिंग रहती है। 150 में भी सेलिंग होती है, 300 की भी होती है, लेकिन ये बनाने में शायद 1 घंटा होता है, तो इसमें से इतना कमा लेती महिलाएं। दूसरा जोड़ना 30 अपने हिसाब से जितनी दाढ़ी चाहिए आपको वैसे रख सकते हो। अपने हिसाब से जितनी डाली चाहिए इतनी ऐसे रख सकते हैं। सॉल्यूशन का उपयोग बिल्कुल नहीं करने का, सिर्फ दो। अच्छा, इसका बेनिफिट ये है मैडम कि इसमें सॉल्यूशन का यूज नहीं करना पड़ता है, सिर्फ थ्रेड का ही यूज करते हैं कोकोनट फाइबर के साथ। तो वो भी अच्छा है कि इसमें कॉस्टिंग ज्यादा से मतलब कम से कम हो रही है इसमें। ये 150 रुपीज में पैर में सेलिंग होती है इसकी। नीचे का जो बेस है वो अभी नहीं है, ये इस तरह का है, लेकिन वो राउंड में भी बेस बना सकते हैं। अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन वो भी बना रही है। बड़ा है तो वो राउंड बेस होगा। ये आपको जैसे चाहिए हाँ, वैसा अभी ये 3 बेस है वो बना रही है। 3 बनाने का, जिसमें आप उल्टा करके लगाने का, ऐसा उल्टा करके लगाने का, और आपका बेस तैयार नीचे का। और डेकोरेशन तो आप आपके हिसाब से करेंगे, यहाँ ऐसा करके खुले करने का। इसमें आप थोड़ी सी पेरकल के चीटे पाड़ोगे तो ऐसा चिपक भी जाएगा और अच्छा भी होगा। और खुला चाहिए तो ऐसा खुले। अपने हिसाब से इसको शेप ये देना है। और ये तो अभी कितनी मिनट हुई, तो ऐसे फिनिशिंग के साथ हम 30 मिनट्स में आराम से बना सकते हैं पीस। और अपने हिसाब से यहाँ स्पैरो रखना है, कोई बर्ड्स रखना है, एक भी रख सकते हैं, फ्लावर्स रख सकते हैं, ऐसा ये डेकोरेशन भी कर सकते हैं, आपको जैसा भी बनाना हो ऐसा। अच्छा, इसमें थोड़ा हार्ड बनाना है तो मिल्क सॉल्यूशन इसमें लगा के इसको ऐसे टाइट करना है, तो इसमें हम स्पैरो भी रख सकते हैं। तो ऐसा ये आर्टिकल है, ये 100 पीस हम बोलते हैं, पैर में आता है। और ये तैयार ऊपर स्पैरो। ओके, अभी हमारे हम ये तो डेकोरेटिव आर्टिकल्स है, लेकिन आ रहा है तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा गणेश जी की मूर्ति प्रतिमा कैसे बनाए वो भी हम आपको दिखाए। और लाइव प्रतिमाएं भी हमारी महिलाएं लाई है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे बाद में। Jay Sri and group, thank you very much from Gardens Club Kolhapur. Thank you. हमारी ट्राइबल महिलाएं वो कार्य करने में तो एक्टिव है, लेकिन वो थोड़ा वो घर से बाहर भी नहीं निकलती, थोड़ा एजुकेशन भी कम है, इसलिए वो डर रही है, ज्यादा बोलती नहीं है।
लेकिन लोकल लैंग्वेज में तो ज्यादा बोलती है, हमें मना करना पड़ता है, होती है कि चलो बोलना कम करो। चलो अभी जो पहला वाला ग्रुप है वो हमें दिखाएंगे कि गणेश जी की मूर्ति कैसे बनाते हैं। बोलते हो मूर्ति गुजराती में बोलो। हाँ अच्छा ये तैयार के हो जाए। नारियल के छिलके वैसे पहले जो प्रोसेस किया हुआ नहीं है, रो कोकोनट फाइबर है वो लिया है और हमें बेस बनाना है गणेश जी का। આવી રીતના બનાવો। पेड़ से ऐसे लंबा करके लपेटना है। જેટલી ફૂટની મૂર્તિ બનાવવાની હોય એટલા ફૂટ। अच्छा हमको जिस साइज की मूर्ति बनानी है उस साइज का ये होना चाहिए। सपोज 1 फीट की बनानी है तो ये 1 फीट का होना चाहिए। એના પછી આ નાળિયેરીના રીસા આવી રીતના લગાવવાનું। अच्छा इसके ऊपर जो प्रोसेस किया हुआ जो कोकोनट फाइबर है उसको लपेटना है थ्रेड से और शेप देना है। अच्छा ऐसे करके करके हमें इस साइज की प्रतिमा बनानी है तो ऐसा हमें थ्रेड से लपेट के इतना तैयार कर दिया। पहले ये करना है, फिर बाद में हाथ जोड़ने। अच्छा हाथ के लिए, हस्त के लिए हाथ માટે બી આવી રીતના કરવાનું। गणेश जी के हैंड बनाने हैं तो उनके लिए भी ऐसे करना है, वो पतला वाला। જેટલું લાંબુ કરવું હોય હાથમાં એટલા લાંબુ કરવાનું। આ ઉઠી જાય। ऐसे हाथ के लिए ऐसा हमें लंबा करना है। सपोज इस साइज की प्रतिमा है तब કરવાનું આવી રીતના બીજું લેવાનું નાળી પતલા પછી આવી રીતના પાછું કરવાનું લગાવવાનું। अब तीसरा हम कर रहे हैं पैर के लिए ना। पैर के लिए ऐसा बनाना है। લગાવી દેવાનું। જેટલું મોટા પગ કરવું હોય એટલા કરવાનું। આવી રીતના થઈ જાય। ये पैर के लिए ये शेप दिया है। चलो अब પછી ऐसे रखना है। ये आगे का भाग है, ये मस्तक का भाग है। हाँ और इसको थ्रेड से लपेटना है। अच्छा वैसे तो मैं आपको मैडम बताऊं ये मूर्ति बनानी बहुत मुश्किल काम है क्योंकि गणेश जी का शेप देना है, लेकिन ये थोड़ा बहुत आपको दिखा सकते हैं कि एक मूर्ति बनानी है तो नॉन स्टॉप 1 दिन लगता है, भले ही वो छोटी हो। वो सुई आती है तो इससे सिलाई का काम करके ये हाथ को बांधना है। तो बताए तो આવી રીતના અહીંયા દેખ સિલાઈ મારવાની। ये हमारा पहला प्रयास है ये गणेश जी की मूर्ति बनाने का। अभी शुरू किया है लेकिन रिस्पांस बहुत अच्छा है। अभी हम आपको लाइव जो भी मूर्तियां दिखाएंगे उसका तो ऑर्डर भी मिल गया है, सेलिंग भी हो गई है। लेकिन आज आपका प्रोग्राम था मैडम को आपको लाने के लिए हमने रखी है, फिर हम कस्टमर को दे देंगे। હાથ માટે થઈ ગયું। પછી જેવી રીતના શેપ આપવો હોય તેમ આપણે આપી શકીએ।
પછી हाथ को जैसा शेप देना हो ऐसे कर्व कर सकते हैं। ऐसे ही पैर में ये सिलाई करनी है और फिर इसको शेप देना है। એટલે નીકળી નહીં જાય એટલા માટે ये सिर्फ हम मिल्क सॉल्यूशन से नहीं करते हैं, सिलाई इसलिए जरूरी है, लेकिन वो शेप बिगड़ जाता है, फिर वो निकल नहीं जाना चाहिए। पहले इनको ये सब ट्रेनिंग दिया जाता है क्या? हाँ, ट्रेनिंग दी है ना मैडम, 30 डेज अच्छा, ओके, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी है, फिर अच्छा, शुरू किया है। लेकिन इसमें क्या है कि हम ट्रेनिंग में तो थोड़ा थोड़ा अलग अलग दिखाते हैं, लेकिन हम अभी मूर्तियां देखेंगे तो अपने हिसाब से इसमें डेकोरेशन है, शेप है, ये महिलाएं ने बनाया है, तो बहुत बढ़िया है। और फिर डिमांड भी आता है कि कोई कस्टमर आता है कि हमें ऐसी चाहिए, આવી રીતના तो वो भी बना सकती है। આપી દેવાનું પછી માથામાં આવી રીતના अच्छा, ये मैडम शेप हो जाए, दिखा दीजिए। ये बेस है, फिर हमें वो स्टमक आता है गणेश जी का, ये प्रोसेस किया हुआ जो फाइबर है वो मिल्क सॉल्यूशन से लपेटते लपेटते ऐसे बढ़ाना है, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके, और सिर भी इस तरह ही बनाना આવી है। રીતના બનાવવાનું પછી અહીંયા પેટ બનાવવાનું और चालू प्रोग्राम। अच्छा मैडम, आपको दिखाई देता है ये? हाँ हाँ, दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी तरह। हाँ, तो इतनी साइज की करनी है तो ऐसे कोकोनट फाइबर का मिल्क सॉल्यूशन से लपेटते लपेटते ऐसे ये महिलाएं शेप देती है, और बाद में सुन हमने मैडम मीडिया कवरेज के लिए આવી રીતના उनका जो सुन આ રેસસ है એમાં દોરાથી એવી રીતના બનાવવાનું પછી થોડુંક આવો રેસર રહેવા દેવાનું बताओ। આ રેસ પછી આવી રીતના ये गणेश जी का भाग हो गया। अभी ये बेस है, फिनिशिंग तो 1-2 घंटे का काम है फिनिशिंग के लिए। हम मैडम ऐसा कर सकते हैं कि भगवान ने हमारा सर्जन किया, लेकिन हमारी महिलाएं भगवान का सर्जन कर रही है। આવી રીતના બાંધી પણ શકાય એના ઉપર રેસો લગાવીને સોલ્યુશન લગાવવાનું ये मिल्क सॉल्यूशन है, वो लगा के દબાવી શકાય આવી રીતના માથું બનાવીને દબાવી શકાય અહીંયા એવું કરી શકાય फिर इसको जैसे भी शेप देना है वो हम दे सकते हैं। આવી રીતના બનાવવાનું આ બધું જેવી રીતના આકાર આપવો હોય તેવી રીતના આપવાનું પછી આ કાન ईयर के लिए, कान मुख के लिए वो दिखा रही है। આ રેસો લેવાનો પછી આમાં આ સોલ્યુશન નાખવાનું આવી રીતના પછી નીચે મૂકીને આમ દબાવી દેવાનું अभी आप सबको पता है मैडम कि આવી રીતના થઈ જાય આ સાઈઝનો આકાર આપવાનો કટિંગ કરી દેવાનું इसको जैसा भी शेप देना हो वो ईयर के लिए, और वो शेप देके फिर यहाँ शेप આવી રીતના उनके वो कर्ण हो गए। हाँ, दिख रहा है गणेश जी जैसा। આવી રીતના કરવાનું
आप जो मिल्क सॉल्यूशन बोल रहे हो वो फेविकॉल है या और कोई अलग तरीके? नहीं, फेविकॉल नहीं है, ये अलग से वो ऐसा केमिकल आता है, मिल्क सॉल्यूशन ही बोलते हैं वो इसमें। लेकिन इसमें ऐसा वो केमिकल है क्योंकि वो अच्छी तरह से चिप जाता है और वो ड्राई होता है तो वो व्हाइट कलर का दिखाई नहीं देता है, इसलिए ये डेकोरेशन के लिए यूज होता है। और दूसरी ये बात है कि हम फेविकॉल यूज करें तो हाथ में हमें स्किन में नुकसान वो डैमेज होगा ना स्किन। मिल्क सॉल्यूशन में ये हाथ से ही कर रही है, फिर वो पानी से धो देगी तो वो निकल जाएगा, तो ये हमारे हेल्थ के लिए स्किन के लिए भी अच्छा है और ये अच्छी तरह से चिपक जाता है। तो ये स्पेशली वो कोकोनट फाइबर्स को चिपकाने के लिए ही हम यूज करते हैं और कॉस्टिंग के लिए भी अच्छा है। ये फेविकॉल नहीं है मैडम। अभी तो यह है कि हमने जो ये इस साल से शुरुआत की है। आप महाराष्ट्र से हैं तो गणेश उत्सव तो वहाँ ज्यादा है, हमारे यहाँ गुजरात से भी ज्यादा। हाँ, तो हमने एक बार दूरदर्शन डीडी गिरनार TV9 गुजराती में हमने अपने हिसाब से दूरदर्शन में ये दिया था। लेकिन अभी क्या है कि इसकी इतनी डिमांड है कि प्रेस वाले अलग अलग जगह से आ रहे हैं, आज भी उनको इंटरव्यू देना है और ऐसे प्रचार प्रसार कर रहे, तो वो अभी रात दिन ये गणेश जी की मूर्तियां बना रही है और मार्केटिंग की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अभी। और हमारी भी केवी के और सरकार की भी इच्छा है कि चलो हम नेचर को अच्छा कुछ दे, वाटर पॉल्यूशन भी हम कम कर सके। और ये 100% इको फ्रेंडली गणेश जी है, आपने ये देखा है, तो ये डिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल, तो पानी में भी कोई नुकसान नहीं होता है और अच्छी तरह से इसको विसर्जन भी कर सकते हैं, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो मैडम आपको भी पता है कि कितना पॉल्यूशन रहता है, इसलिए इसकी डिमांड है। और आगे कलेक्टर साहब और हमने मीटिंग की थी, आज भी हम जाने वाले हैं, कम है इसीलिए। और आगे हम ये सोच रहे हैं कि एक यूनिट हम तापी डिस्ट्रिक्ट में खड़ा करेंगे। इतनी सारी महिलाएं हैं, तो ये तो 12 महिलाएं हैं, तो ऑर्डर तो 500 मूर्ति का है, तो वो कैसे बना पाएगी। तो हमारी बहुत सारी महिला है, तो उसको हम मार्केटिंग हम करें और हम इसको वो शेप दे दे कि आपको ऐसा बनाना है, और उसका जो स्किल का जो काम रहता है तो उसकी हम मजदूरी दे देंगे। तो 12 महिलाएं इसके जगह 1200 महिलाएं इसमें गुरु काम करेगी। ऐसा हमारा हमारे जो ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर है वो भी हमारे साथ है। तो ऐसा हमने अभी तो शुरुआत की है और सोच रहे हैं। और मेरी ये भी विनती है कि ये यहाँ नहीं, हमारे इंडिया में हर जगह इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्ति का वो अवेयरनेस और यूज करें और पॉल्यूशन हम कम करें। अब हम आपको दिखाएंगे कि डेकोरेशन करने के बाद ये कैसे दिख रही है मूर्ति। एक मिनट पहले आप बाजू घड़ी તમારી હતી ને બતા। अच्छा, हमने जो अभी बेस तैयार किया तो ये ऐसी मूर्ति दिखेगी। अहिया नीचे। अच्छा, ये गणेश जी की मूर्ति है जो हमने अभी दिखा है ना, तो इस साइज की है। फिर हम अलग अलग डेकोरेशन वाली आपको दिखाएंगे। ये दूसरी है। इसका जो फिनिशिंग बनाया है बाद में वो किस तरह से किया है, क्योंकि वहां उसमें तो फाइबर दिख रहे थे, अभी जो आपने रॉ वाला दिखाया अभी बनाते बनाते, और इसको हाँ, वो जो प्रोसेस किए हुए जो फाइबर्स है, इससे थोड़ा थोड़ा करके मिल्क सॉल्यूशन हाथ से लगा के ऐसे टाइट करके फिनिशिंग किया है। ओके। वो काम है। और इसमें दिक्कत भी ज्यादा होती है, शेप देना पड़ता है साथ में, तो एक दिन हो ही जाता है शेप देने में। ओके, तो वो सॉल्यूशन के से ही दबा दबा के उसको शेप दिया गया है। सॉल्यूशन से दबाते हैं और वो डेकोरेशन वगैरह करने के लिए थ्रेड का यूज करते हैं। वो सॉल्यूशन की कंपनी का कुछ नाम है या ऐसे कुछ है, बता पाओगे? मिल्क सॉल्यूशन ऐसी हार्डवेयर से लेते हैं, कहाँ से लेते हो? सॉल्यूशन से ही वो, हाँ यहाँ तो ऐसे ही मिलता है मिल्क सॉल्यूशन। नहीं, लेकिन हार्डवेयर वाले के पास या कहाँ से मिलता है? बिकॉज आई हैव नेवर हर्ड ऑफ दिस। शायद हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे महाराष्ट्र में,
वो शायद गुजरात में वो लोग कर रहे हैं, उनको वहां से इजीली मिल रहा है, पर हम लोग ढूंढ सकते हैं। हाँ वो मिल जाएगा। इसका यूज मैडम कौन कर रहा है आपको बताओ, वो जो जूते बनाते हैं ना, हाँ 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 वो जो सॉल्यूशन यूज करते हैं ना वो मिल्क सॉल्यूशन है। तो पहले मुझे भी दिक्कत हुआ था कि उनको ये गृह उद्योग मैंने शुरू करवाया तो वे ये हम कहाँ से लेंगे। तो अच्छा मैंने सूरत में, हमारा नजदीक सूरत है, तो वहां मैंने कांटेक्ट किया इस तरह ही, फिर मुझे वहां से ही मिला। वो दुकान, वो शॉप नहीं होती है, फिर धीरे धीरे मुझे मैं यहाँ, और वो वहां से ही मिल सकता है, वो हार्डवेयर की दुकान में भी नहीं मिलता है और क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती है। तो वो अगर कोई आपके यहाँ शुरुआत करना चाहे तो मेरा कांटेक्ट नंबर दीजिएगा, तो हम आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि यहाँ सूरत में मिलता है तो महाराष्ट्र में, मुंबई में तो मिल ही जाएगा। जी अच्छा जी, थैंक यू मैम। हाँ हाँ हाँ, 2-3 मूर्ति है तो वो हम दिखा देते हैं, फिर हमारा सेशन कम कर। अच्छा, ये आसन वो जो बाजेट बोल रहे हैं, इसके साथ हमने ये ऑर्डर से बनाई हुई, आपको दिख रहा है ऐसे, दूसरी दिख रही है। फटाफट लेके आओ, टाइम कम है ना इसलिए। आसन आसन भी कॉयर का ही बनाया है ना? हाँ ना, वो लकड़ी है, वांस बोलते हैं ना। हाँ, Okay. इसके ऊपर फिर कॉयर को लपेटा है। ये पैर के बगैर की है, कॉस्टिंग का। ये छोटी है मूर्ति, ये आसन के साथ है। हाँ ओके। और अभी यहाँ लाइव दूसरी नहीं लाए हैं, क्योंकि 5-5 फीट 4 फीट की भी महिलाओं ने बनाई है ऑर्डर से, और वो सेलिंग भी हो गई है, ये भी आप देख सकते हैं। और आगे वगैरह सब पेंट किए क्या? वो ऊन आता है ना, वो क्या बोल रहे हैं, ऊन, इससे वो थ्रेड से ही किया है सभी। ओके। इसके लिए सारांश सारी बता। और ये अब अभी आप जो देख रहे हैं, ये 2 फीट की है, इसकी डिमांड ज्यादा है, 3-4 ऑर्डर है कि हमें ऐसे ही चाहिए। 4 हाथ की है मैडम। हाँ, साड़ी बहुत ही ग्रेसफुल है, कलर्स एंड हाँ। ऑल कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लिया है। और ऐसी तो 20-25 प्रतिमाएं अभी वो महिलाएं बना भी रही है ऑर्डर से। और ये हमारा एक नया, हमारे केवीके का और केवीके तापी, और साथ में स्टेट गवर्नमेंट भी हमें मार्केटिंग के लिए सहायक है, तो इसलिए हमें हमारी महिलाएं के लिए फॉर एम्पावरिंग ट्राइबल वीमेन बहुत अच्छा है। और मेरी विनती भी ऐसी है कि गणेश है हर साल, तो इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमाएं हैं, वही विसर्जन में यूज हो तो नेचर के लिए भी ठीक रहता है। और हमारी गुजरात में तो, साउथ गुजरात में ये फर्स्ट टाइम है, और सरकार भी इसमें मार्केटिंग के लिए सहायता कर रही है। तो थैंक यू वेरी मच मैडम, और आपको कोई क्वेश्चन है तो हम डिस्कस करें। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, क्योंकि रूरल क्राफ्ट है, हमारे साथ तो महिलाएं की भी होगी, ऑफिसर्स भी होंगे शायद। कुणाला काही प्रश्न असतील तर विचारा, जिसको भी कोई क्वेश्चन पूछने हो तो पूछ सकते हो। मुझे शायद ऐसा लगेगा ये सेशन थोड़ा नया, म्हणजे आपण सर्क्युलेट
जी मैम, ये नेक्स्ट ईयर से महाराष्ट्र में अवेलेबल होना शुरू होगा शायद, हमें आशा है। बहुत अच्छी बात है और होना ही चाहिए मैडम, क्योंकि जरूरी भी है। क्योंकि हम जब विसर्जन करते हैं तो आपने भी देखा है, हमने भी देखा है कि जो विसर्जन के बाद जो प्रतिमाएं हम देख रहे हैं वहां में बहुत दुख होता है। तो ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति जो हम यूज कर रहे हैं, तो इसकी जगह ये। और इसमें बेनिफिट क्या रहता है मैडम कि ये तुलसी भी नहीं है और हैंडी भी होती, इसका वो जो वेट है वो भी नहीं होता है और अच्छा है ये। और हम महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट भी दे सकते हैं। बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। महाराष्ट्र में भी बचत गट जैसे होता है। अभी हमारे यहाँ मतलब अभी कोई क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगी। धनश्री मैम तुम्हें आहे, हमारे जो पास्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर धनश्री पाटिल मैम है, तो वो अभी कोंकण में है। तो तो वहाँ पे वो जो काम कर रही है वही ट्राइबल जो औरतें हैं। हॅलो हेलो हॅलो, हा माझा आवाज येतोय. हा, धनश्री मॅम तुम्ही 2 मिनिटं बोलणार आहे तुमच्या इथे ट्रायबल ह्याच्याबद्दल? येत नाही आवाज. आमच्या इकडे ट्रायबल म्हणण्यापेक्षा कोस्टल कम्युनिटीज म्हणते. कोस्टल कम्युनिटीजचे जे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आहेत. हॅलो, ऐकू? हा धनश्री येतंय ना? हा, कोस्टल कम्युनिटीज आहेत आणि ते बरंच काय काय करतात अशा प्रकारच्या गोष्टी वेगवेगळ्या. आणि धनश्री कॉयर फॅक्टरी पण एक आहे. हॅलो हॅलो धनश्री मॅम, धनश्री मॅम हिंदी मध्ये बोलाल का? ओके ओके, हाँ हिंदीत बोला. यस हाँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही अच्छा बनाया है ये जो बनाया है वो. मैं कोकण से हूँ और इधर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक कॉयर फैक्ट्री भी है. ये सारी महिलाएं ही काम करती है और इतनी अच्छी बात है कि आजकल इधर कोई काम करने के लिए काम वालियां नहीं मिलती, बिकॉज दे आर रियली फ्रीलांस बन गई है, वो आत्मनिर्भर. और वो कॉयर फैक्ट्री में बहुत काम करता है. कॉयर फैक्ट्री में वो रेगुलर चीजें भी बनती है, लेकिन ये मैंने जैसे एक प्रोडक्ट भेजा है अभी कोल्हापुर को ग्रीन शॉपिंग के लिए, और वो स्क्रबर्स हम जो यूटेंसिल्स करते हैं वो भी है. इधर ट्राइबल से ज्यादा जो कोस्टल कम्युनिटीज है, वो कोस्टल कम्युनिटीज भी कोकोनट के लीव्स का बहुत अच्छा प्रयोग करती है. उसका वीविंग करके वो शेड्स के लिए बनाती है. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है बचत गट, उनका ये काम रहता है. लेकिन ये बहुत ही अच्छा और डिफरेंट है, हमने बहुत कुछ सीखा भी आजकल. सो वी विल गेट कॉयर. हम लोग इधर कॉयर मिल सकती है. ऐसी चीजें मैंने पहली बार देखी है. इधर वुडन टॉय आर्ट नहीं इधर बनते. इधर यूजफुल जो चीजें है, मैट्स जो है वो बनती है यहाँ पे. मॉस्टिक भी अभी धनश्री मैम, वेटलैंड के यहाँ पे जो आपके उधर औरतें काम करती है, हम लोग आए थे, पूरा अपनी नाव लेके, मतलब इतना अच्छा लगा था कि इधर भी औरतें कम नहीं है. मतलब वहाँ पे वेटलैंड रिजर्वेशन में वो पूरा काम करती है, नॉलेज है. वेटलैंड्स के हमने एक कॉन्फ्रेंस ली थी उधर. इधर कोस्टल वुमेन जो है उनको यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, उन्होंने उनको 2 बोट्स दिए और वो इतना अच्छा नेचर का काम कर रही है कि वो नहीं सोचती कि मैं थक जाऊंगी रोइंग करके. हैंड रोइंग करते हैं. और मैंग्रोव जो है, कांदड़वन जिससे बोलते हैं, मैंग्रोव प्लांट्स आते होंगे गुजरात में भी बहुत मैंग्रोव है. सुंदरबन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उधर का. सो इसी तरह इधर वो कोस्टल वीमेन जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप की, अदरवाइज वीमेन ग्रुप्स तो आर्टी क्राफ्ट्स और ये आचार बनाओ, पापड़ बनाओ, इसमें रहती है. वो भी इम्पोर्टेंट है. वो भी बहुत अच्छा तरीका है विदाउट प्रिजर्वेटिव प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने का. लेकिन ये महिलाएं इधर मैंग्रोव सफारी चलाती है. जैसे टाइगर सफारी रहती है वैसे वो मैंग्रोव सफारी चलाती है. बोट रोइंग किए पर टूरिस्ट 200 रुपीज उनके चार्जेस है. उनको खाना भी दे सकती है, फिश बना के वगैरह. सो दे आर रियली कॉन्फिडेंट. बहुत अच्छा आत्मविश्वास उन्होंने. तो देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. मैंग्रोव फाउंडेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इधर
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर वो आता है, मंडल है मैंग्रोव सेल मालवन का। सो उन लोगों ने उनको ट्रेनिंग दिया और उन लोगों ने वो जो औरतें हैं 10, उन्होंने, श्वेता हुले उनकी लीडर है, और उन लोगों ने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया और बहुत सरप्राइज मतलब तो रीजन सा भी हो, ये औरतें जिनको हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि वो वीक है, तो हाँ बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। और हमारे इधर धनश्री मैम ये कर रही है और हमने आंखों से हमारी देखा था, एक्सपीरियंस किया, तो इसलिए मुझे लगा कि थोड़ा सा वो शेयर करे। मैडम, आप सबके रॉ मटेरियल तो है ही कोकोनट फाइबर का। अभी आप गणेश जी की प्रतिमाएं भी बना करवाए आपकी वो जो सखी मंडल की एसएसजी के ग्रुप है, तो अभिनंदन, और आपको भी अभी बहुत अच्छा काम किया। कल्पना मैम। हाँ हॅलो, हाँ हॅलो पल्लवी. हाँ कल्पना मॅम, आपल्याला कुणाचे काही प्रश्न आहेत का घ्यायचे किंवा मॅम बरोबर आपल्याला काही डिस्कस करायचंय? कोणाचे काही क्वेश्चन असेल तर विचारू दे ना, नो प्रॉब्लम. जी, आपने इतना बढ़िया दिखाया है कि कोई अभी कुछ मतलब सब सोच रहे हैं कि अभी कॉयर लाके कब ये सब बनाए। बहुत ही बढ़िया दिखाया आपने। मुझे भी ये कैसा आपको सेशन लगेगा, लेकिन आई होप आपको अच्छा ही लगेगा। बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया था, और बना सकते हैं मतलब गणेश जी पल्लवी, का। हाँ। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ना 30 डेज का, तो हमारी महाराष्ट्र की महिला है, अभी कोकण की ये महिला है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनको आप ट्रेनिंग दे सकते हैं क्या? हमारी जो अभी वो ये महिलाएं हैं जिसने वो ट्रेनिंग की शुरुआत की है और ये ग्रुप जो कर रही है, तो इसमें जो लीडर है वो ही ट्रेनिंग आपको दे रही है। 30 डेज की है इसलिए। हाँ, वो हो सकता है। वो हमारी तापी डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि 30 डेज ट्रेनिंग रहती है, और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र का मैंडेटरी एक्टिविटीज पता ही होगा कि हमारा इतना हेक्टिक शेड्यूल रहता है कि 30 डेज में नहीं पाती। क्या करते हैं, ऐसे लोगों को एम्प्लॉय मिले तो उनको ही हम इंस्ट्रक्टर और हम दिलवाते हैं, उसमें हम टेक्निकल गाइड भी देते हैं। आपके यहाँ जो सखी मंडल के मेंबर्स है वो ट्रेन, तो मैं तो हूँ, लेकिन 30 डेज की है, तो आप अरेंजमेंट ये महिलाओं का कर दे तो 2 महिलाएं आके आपको सिखा सकती है, ट्रेनिंग भी दे सकती है। अच्छा, काफी बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। ऑनलाइन इसमें मजा नहीं आएगा कि ये स्किल का, क्योंकि ये 30 डेज की हमने दी है, लेकिन 1 वीक तो हमने ज्यादा ही दी थी, क्योंकि ये स्किल का काम है, तो ये प्रैक्टिकल दिखाना भी पड़ता है, और महिलाएं अपने आप करेगी तभी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये ऑनलाइन आपने जो देखा तो आपको लगा कि चलो हम गणेश जी की प्रतिमा बना सकते हैं, ये देख लिया, लेकिन आप जब बनाना शुरू करेंगी तो नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें और इको फ्रेंडली गणेश हमारे यहाँ तो झाड़ू से, क्ले से बनता है, हमने देखा है पेपर मैशी से बनता है, लेकिन कॉयर का फर्स्ट टाइम जो पूरा इको फ्रेंडली फ्रॉम इट्स जो नीचे का बेस है वो भी कॉयर का ही बनाया है। ये तो बहुत फुल्ली इको फ्रेंडली है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है आपका। और इसमें मैडम क्या है बेनिफिट कि क्ले की होती है मिट्टी की प्रतिमा, तो ये हम घर में लाते हैं वो स्थापना के लिए, तो शायद ये वो टूट जाए या खंडित हो जाए, तो इसका डर रहता है। इसमें कुछ नहीं होगा, हम आराम से है वो लेके आ सकते हैं, ऐसे कुछ हो गया तो वो टूटेगी नहीं, तो ये हमको डर नहीं रहता। तो ये भी लाइट वेट। हाँ, और इसमें क्या है कि जो क्ले की जो बनती है, हमारे यहाँ सूरत की जो सिटी की महिलाएं है वो भी मिट्टी की बनाती है स्पेशली, लेकिन कॉस्टिंग इसकी बढ़ जाती है मिट्टी की, और इसकी कॉस्टिंग देखे तो डबल हो जाती है वो मिट्टी की। सपोज ये 2500 की है और इसी साइज की हम मिट्टी की बनाए तो 5000 6000 इतनी कॉस्ट रहती है, तो कस्टमर के लिए भी ये कॉस्टली भी नहीं रहेगी।
हर तरह से ये इको फ्रेंडली भी है, कॉस्टली भी नहीं है, वो खंडित भी नहीं होती है, और सभी हैंडी तरह भी से है, अच्छा है। हाँ, हैंडी, लाइट वेट। ये जो लाइट कॉयर का जो क्राफ्ट रहता है ना, कॉयर का, वो कितने दिन उसका लाइफ रहता है, ऐसे कुछ खराब इसमें नहीं मानसून की नहीं, कुछ नहीं होता है। प्लास्टिक में लपेट के हम ऐसे ही बना के रख दे तो 1 साल तक या 1.5 साल तक नहीं रहता है। हाँ, मानसून में बारिश के मौसम में वो खुला नहीं रहना चाहिए, तो वो मॉइस्चर से थोड़ा खराब हो सकता है, उसका कलर अच्छा। वो हो सकता है। वो जो मटेरियल ला रही है हमारी महिलाएं, तो वो ऐसे पैक करके रखती है, फिर बाद में वो आर्टिकल बनाती है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होता है। अभी उनके पास आर्टिकल है, लेकिन 1 साल के बाद भी वो सेलिंग करना चाहे तो वो ऐसा ही दिखेगा, इसका कुछ नहीं होता है, इसलिए वो अच्छा है। ओके, तो मैडम बहुत ही और कुछ? पल्लवी। हाँ, एक्चुअली ये थोड़ा बोलना बहुत, मतलब जिस लेवल पे आप काम कर रहे हो ना, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि हमारा जो क्रिएटिविटी या जो आर्टिकल बनाने का स्टाइल है, उसमें इंटरचेंज, एक्सचेंज भी हो सकता है क्या? मतलब जो आपकी स्टाइल है, जो गुजराती स्टाइल है, और कल जैसे हमारे उधर यंग हमारी जनरेशन है, उन्होंने कुछ अलग मॉडर्न आर्ट में बनाया, हाँ, कंटेम्पररी मॉडर्न आर्ट में बनाया, तो उसमें बहुत अच्छे, मैं एक्चुअली आपको भेजा नहीं मैंने कल, पर जो उसने टॉयज बनाए या प्लांटर्स बनाए, तो मतलब अच्छी बात है कि अगर हम कुछ ये एक्सचेंज कर पाए कि आपकी जो औरतें हैं ना, मतलब आपके वो भी उधर जो सीख काम सके। करने वाली है, तो उनको भी अच्छा नए आइडियाज मिल जाएंगे। क्योंकि हमारे इधर चिनार करके एक आर्टिस्ट है, तो उसने कॉयर से ऐसे थोड़ा मॉडर्न तरीके के कल स्कल्पचर्स बना के दिखाए। फिर और एक लड़का है वेद करके आर्टिस्ट, उसने भी दिखाया, और सच में टॉयज में इतना, या मास्क जो है, तो अच्छे थोड़ा सा एमसिल और वो यूज करके आपका जो है वो पूरा कॉयर में है, प्योरली कॉयर और कोकोनट शेल में है, वो भी बहुत ही बढ़िया है। तो हम लोग ऐसे एक्सचेंज प्रोग्राम करके, तो मुझे भी कुछ नया जानने को मिलेगा, और हाँ हमारी जो हाँ महिला है वो सिटी में जा रही है, तो हाँ, आर्टिकल ऐसे भी बना सकती है। जो और आप बोल रहे थे ना पहली बार की सिटी के लोगों के रिक्वायरमेंट्स अलग रहते हैं, तो अलग जो रहती तोरण है, है ना, तोरण वो भी हमारे हाँ, इधर कोई आर्टिस्ट है, अलग। तो वो कपड़े से, जैसे कल्पना मैम को भी, मतलब वो भी कुछ कुछ धागे से हमारे इधर है, जो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर हमसे उनको कुछ अच्छा दे पाए हम लोग, तो वो भी बढ़िया रहेगा। आप हम लोग चाहते हैं कि आपके उधर हम लोग विजिट करें, थोड़ा ये सब देखें। श्योर श्योर, मोस्ट तो वेलकम। हमारे उधर ऐसे हम लोग 20-30 अराउंड 30 वुमेन है, जो अलग अलग प्रोफेशन में, खुद के हर एक के प्रोफेशन है, पर हम लोग, हमारी जो एनजीओ है उसमें भी इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऐसे अलग अलग प्रोग्राम्स ले रहे हैं, तो घूमते भी है बहुत। तो गुजरात आएंगे तो पक्का आपके उधर गुजरात आएंगे में भी कल्पना आप मैम। घूमने आएंगे, वेलकम मैडम। मुझे लगता है अभी वोट ऑफ थैंक्स कल्पना मैम पे तो अच्छा रहेगा, आप और दोगे? नहीं पल्लवी, यू कैन ओके, ठीक है, ठीक है। शायद अभी किसी को क्वेश्चन्स नाही आहे, मी एकदा शेवट कुणाला काही विचारायचं असेल तर आपण ग्रुपवर सुद्धा विचारू शकतो। मैम ने अपना फोन नंबर भी शेयर किया हुआ है। वो भी है कि वो बहुत ही बिजी रहते हैं, क्योंकि हम लोग जब एग्रीकल्चर कॉलेज में फर्स्ट टाइम गए थे मीटिंग के लिए, तो आपको पता होगा मैम, डॉक्टर संग्राम धुमार सर, उन्होंने डायरेक्टली कांटेक्ट किया था आपसे, तभी भी आप किसी रूरल एरिया में थी, पूरा बिजी थी, रेंज का प्रॉब्लम था। उसके बाद जितनी बार भी हुआ आप किधर किधर तो काम में ही थी। इवन कल भी जब, हाँ हाँ, हेक्टिक शेड्यूल रहता है हमारा। हेक्टिक रहता है, तो कल भी मैंने फोन किया तो सिर्फ हमारी प्रोग्राम के लिए आप, मतलब थोड़ा रेंज वगैरह जहाँ पे प्रॉपर हो, आपको बहुत सारे अरेंजमेंट करने पड़े। ऊपर से ये सब जो बचत गट की जो महिलाएं है, वो भी अभी बहुत बिजी है, जैसा आपने बोला कि उनको 500 मूर्तियां बनानी है, पर सिर्फ हमारे प्रोग्राम के लिए आपने इतना टाइम निकाला, उनको भी अच्छे से हमें इंट्रोड्यूस करवाया। बहुत बढ़िया, मतलब हम बहुत शुक्रगुजार है आपके।
क्योंकि सच में बहुत हेक्टिक शेड्यूल है और उससे आप हमें इतना गाइड किया। और दूसरी बात मुझे ये अच्छी लगी कि आपने पूरा फ्री होके, मतलब ये जो है वो सिक्रेटिव रहते हैं, जैसे कि आप उनको दे रहे एम्प्लॉयमेंट, तो ये सबको दिखा देंगे तो उनका क्या ये रहेगा, बराबर है ना। फिर भी आपने कुछ भी छोटी छोटी बातें भी कुछ भी छुपाई नहीं, पूरा हमें करवा के दिखाया और इतने कम टाइम में एकदम बेसिक कॉयर से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक हमें सब अच्छे से एक्सपीरियंस करने को मिला। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हम पक्का मिलेंगे, आप महाराष्ट्र में आओ, मैंने Sure, जैसे sure. बोला। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मैडम, कल्पना मैडम। थैंक यू। Yes, thank you very Again, much. thank you. And also Thank you welcome so to much. Kolhapur once. और हमारी महिलाएं जरूर आइएगा। दे रही है, थैंक यू कह रही है। हाँ, जी जी, yes, थैंक yes, यू। yes, yes, yes. Okay, Thank you very much. बाय Okay. बाय। Yes. आपका स्वागत है।